Today we will discuss Keynes' psychological law of consumption theory, and it lies under the Keynesian economics 1. इसके हम आज के MCQs डिस्कस करेंगे BA/BSc एग्जाम्स के लिए. First of all, I want to give some brief intro of this law. What is the statement of this law of Keynes? Keynes' psychological law of consumption can be stated as the average tendency on the part of the people is this: whenever the incomes of the people increase, they increase their consumption, but not as much as their income increase. The ratio of increase in consumption is always different from the ratio of increase in income. Mostly जो consumption की ratio है वो कम ही रहेगी as compared to the ratio of increase in income. We will discuss the following points in MCQ's form. That first of all we will discuss Keynesian consumption function, and under this we will discuss autonomous consumption, what is induced consumption, marginal propensity to consume, average propensity to consume. Then we will discuss Keynesian saving function, and under this we will discuss average propensity to save and marginal propensity to save. Then we will discuss some MCQs about economic implications of Keynes' law of consumption, and then we factors affecting consumption and savings, and under those factors we will discuss two factors, that is subjective factors and objective factors. Now we will discuss the MCQs. Now first MCQ is that according to Keynes, consumption expenditures depend upon four options are there: interest rate, income, savings and none. So B1 is the right option, that is income. Relationship between consumption and income is known as the right option is A and B. That we can describe the function with relationship between consumption and income as a propensity to consume, or we can say that it is a consumption function. Both in consumption and income के relationship को हम दोनों नाम से बुला सकते हैं: propensity to consume and consumption function. Which is the right statement about the consumption function? A and C are the right option. That is, consumption increases with the increase in income, and C is the consumption decrease with the decrease in income. B and D is not the right option. The components of the consumption are A and B are the right option, that is autonomous consumption and induced consumption. C and D are not the right one because these are autonomous saving and induced saving, that are the components of saving, not of consumption. Fifth question is how can we can define autonomous consumption? A and B are the right options. Those consumption expenditures which are made even on zero income is known as autonomous consumption, and B is consumption which is not affected by income. अगर आपकी इनकम किसी मंथ में नहीं भी है तो फिर भी आप बेसिक नेसेसिटी आपकी अपनी पूरी करेंगे, दैट इज फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथ्स, etc. So this kind of consumption does not depend upon income. Those consumption expenditures which go on increasing along with increase in income is known as the induced consumption. Induced consumption depends upon income. If we have the high level of income, then our induced consumption will go rise along with the income. Like जो बेसिक नेसेसिटी पूरी होने के बाद की जो कंजम्पशन है, लाइक अगर हमने कोई गाड़ी ले ली है, कोई ज्वेलरी ले ली है, इस तरह की जो चीज़ें ले ली हैं, दैट आर द इंड्यूस्ड कंजम्पशन. Seventh question, we represent autonomous consumption as A is the right option, that is C naught, and C naught is always greater than 0. We represent induced consumption as small c and Y, where C stands for marginal propensity to consume and Y stands for national, that Y stands for income, जो कि हमारी इनकम होएगी, and C is greater than 0 and but it is always less than 1. Ninth question, what CY represents? CY represents the extent of the increase in consumption due to increase in income depends upon the value of MPC C. The small c जो हमारी कंजम्पशन, जो इनकम की इंक्रीज करने से कंजम्पशन इंक्रीज करेगी, वो हमारी डिपेंड करेगी हमारी स्मॉल सी की वैल्यू पे. तो सी वाई इसकी जो वैल्यू है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है. बी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन बिकॉज दैट इज एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम. नोट वी सी एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑलवेज और ड्यू टू चेंज इन इनकम. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन. 10th is when we divide consumption by income, we get average propensity to consume, that is denoted by APC. B is the right option, and EPC का फार्मूला जो नीचे दिया गया है, APC is equal to C over Y,
and where C is equal to C naught plus CY, and we can write this formula, हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि नीचे डिफाइन किया गया है. The ratio of change in consumption to change in income is known as MPC, that is marginal propensity to consume. MPC is also known as अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस राइट हैं, सॉरी मैं उसको मेंशन करना बोलूँगी. स्लोप ऑफ कंजम्पशन शेड्यूल एंड डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, बोथ दीज ऑप्शंस आर द राइट ऑप्शंस. हम एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, हम दोनों नामों से भी बुला सकते हैं. सो ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन. यहाँ पे एक ई ऑप्शन भी होनी चाहिए थी, दैट ए एंड बी, सो वो मिसिंग है यहाँ पे. 13 क्वेश्चन मैथमेटिकली वी कैन राइट एमपीसी एज ए एंड सी आर द राइट ऑप्शन. एमपीसी इज बेसिकली हमेशा चेंज की बात करता है, तो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ए इज राइट ऑप्शन. एंड डी हम डेल्टा को डी से भी नोट कर सकते हैं. सो ए एंड सी हम दोनों राइट आंसर्स हैं. दिस इज द मैथमेटिकल क्वेश्चन. इफ सी नोट इज इक्वल टू 40 एंड स्मॉल सी 0.6, वाई इज 300 एंड फाइंड आउट द एपीसी. तो हम वैल्यूज में पुट कर देंगे एपीसी में. एपीसी इज इक्वल टू सी वाई, तो हमारे पास एपीसी आ जाएगा 0.73. इफ y1 इज इक्वल टू 300, y2 इज इक्वल टू 400, के इनकम 300 से 400 हो गई है, लेकिन सी नोट और सी स्मॉल सी सेम है, तो हमने एमपीसी को फाइंड आउट करना है. ये सारा मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको काइंडली स्टडी करें. 16 क्वेश्चन इज, इफ वी डिवाइड सेविंग विद लेवल ऑफ इनकम वी गेट एपीएस, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. APC and MPC is not the right option that linked with the consumption, and MPS is not, it is not asked that there is change in income. This is simply saving with the level of income, so this is the average propensity to save. The ratio of change in saving to the change in income, यहाँ पे चेंज की बात है, तो इसका मतलब बी इज राइट ऑप्शन, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. नीचे उसका फार्मूला दिया गया, डेल्टा से भी नोट कर सकते हैं, डी से भी सकते हैं. 18 क्वेश्चन वी कैन राइट केन्सियन सेविंग फंक्शन एज सी इज द राइट ऑप्शन, एंड माइनस एस नोट स्टैंड फॉर ऑटोनोमस सेविंग, स्मॉल सी एमपीएस एंड एस वाई इंड्यूस सेविंग. एमपीएस इज आल्सो नोन एज, हमेशा ये भी वही जो जैसे एमपीसी बताया था, इसमें इसको दो नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं. ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन. स्लोप ऑफ द सेविंग शेड्यूल एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेविंग फंक्शन, हम एमपीएस को इन दोनों नामों से भी लिख सकते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस? ए बी एंड सी ऑल आर द राइट ऑप्शंस. बेसिक जो फंक्शन है वो ए है, एबीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1. उसको हम आगे फर्दर भी डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं. सो ऑल द ऑप्शंस आर राइट 1. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस? अगेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव इज इक्वल टू 1. सारी ऑप्शंस राइट है. केन्सियन प्रेजेंटेड लॉ रिगार्डिंग कंजम्पशन नोन एज द केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. हम उसके लॉ को जो उसने कंजम्पशन से रिलेटेड दिया उसको हम इस नाम से बनते हैं. केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट्स बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन. यहाँ पे भी फिर एक ई ऑप्शन मिसिंग है कि बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन. Whenever the income of the people increases, they increase the consumption, but not as much as their income increases. Similarly, whenever the D option, whenever the income of the people decrease, they decrease the consumption, but not as much as their income decrease. B and D are the right options. Increase to decrease दोनों फॉर्म में लॉ अप्लाई होगा. According to Keynes psychological law of consumption, A and C are the right option. और ये जो रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम है, ये इंक्रीजिंग है. The increasing relationship between consumption and income is non proportional. ये प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि जितना इनकम इंक्रीज करेगा उतना कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करेगा. नीचे नॉन प्रोपोर्शनल की मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसको आप लें. व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा ये हुआ कि हमेशा सेम चेंज आएगा. अगर एक तरफ इंक्रीज हो रहा है दूसरी तरफ भी इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिक्रीज हो रहा है दूसरी तरफ भी डिक्रीज हो रहा है, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं. और डिक्रीजिंग फंक्शन ये है कि अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा ऑपोजिट उनका चेंज आएगा, उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, बी इज द राइट ऑप्शन. ये शॉर्ट रन पे अप्लाई करता है ये मॉडल. ड्यू टू नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, एमपीसी इज ग्रेटर देन 1. बी इज द राइट ऑप्शन. सी इज एमपीसी नॉन प्रोपोर्शन. एमपीसी इज सी एंड सी इज लेस देन 1. सॉरी, इसमें ए जो है वो राइट ऑप्शन है. एमपीसी इज ग्रेटर देन 1. सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें एमपीसी ए ऑप्शन राइट 1 है कि ये लेस देन 1 होगा. ये ग्रेटर देन 0 से होता है, लेकिन 1 से लेस होता है. ए इज राइट ऑप्शन, बी इज नॉट द राइट ऑप्शन. फाइंड आउट द एमपीसी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूले में पुट करें, इसलिए आ जाएगा आपके पास. विच आर इंक्लूडेड इन द असम्पशन ऑफ कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन. सारी जो असम्पशंस हैं ये कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की असम्पशंस हैं. और यहाँ पे जो रिच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सी ऑप्शन, इसके मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है. कीन्स एमपीसी लेस देन 1 मीन्स, ये सारी जब हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं कीन्स लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल
कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन थ्योरी की, तो उसमें हमारे पास ये सारी के ऑप्शन ऐसी हैं कि ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, ये इसकी इम्प्लीकेशन है कि ये किस किस चीज़ को हाईलाइट करता है। MPC लेसन 5 हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड को हाईलाइट करेगा। व्हेन MPC 1 लेसन 1 होगी, इट मीन्स कि इनकी इनकम इंक्रीज कर रही है, कंजम्पशन होती है उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रही, मतलब लोग सेव भी करेंगे। जब लोग सेव करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस कि एग्रीगेट डिमांड को लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड लो होगी फिर अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करेगी इकोनॉमी में। MPC 1 वही इसमें व्हेन द गुड्स रिमेन अनसोल्ड, तो ये इकोनॉमी विल टर्न फ्रॉम बूम टू कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रेडिंग साइकिल के इस फेज को हाइड करती है। व्हाट हैपेंस टू सेविंग्स व्हेन कंजम्पशन डज नॉट राइज इन द सेम वे एज द इनकम। सेविंग जो है वो गो ऑन टू इंक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू कंजम्पशन। अरे बात है कंजम्पशन उससे आपसे इंक्रीज नहीं करेगी तो वो पार्ट सेव हो जाएगा, तो वो सेविंग इंक्रीज करेगी। इफ सेविंग गोज ऑन क्यूमुलेटिव, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर द राइट ऑप्शंस। मुझे तेजी से बोलना पड़ रहा है क्योंकि फिर अगर मेरी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा हो जाती है फिर वो अपलोड नहीं होती, मुझे फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको गो थ्रू कर लें, मैंने सब चीज़ें नीचे डिफाइन करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ MPC लेसन 1 कीन्स हैव प्रेजेंटेड द कांसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कीन्स। द मेन डिटर्मिनेंट्स कंजम्पशन इज इन द शॉर्ट रन आर द टू इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बोथ आर द ऑप्शंस। द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सेविंग द कंजम्पशन इन द लॉन्ग रन आर द क्लासिफाइड एज द सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं वो लोगों की साइकोलॉजी से लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो कि इकोनॉमी में प्रिवेल रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्टिव फैक्टर। बाकी सारी चीज़ें जो इंसान से लिंक करेंगी वो सब्जेक्टिव फैक्टर होंगी। जो चेंज इन पॉपुलेशन जो कि इंसान के माइंड से लिंक नहीं करता, तो दैट इज द नॉट द सब्जेक्टिव फैक्टर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फैक्टर। ई इज द राइट आंसर। द सोसाइटी वेयर पीपल बिलीव इन ऑस्टेंटेशन, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे लोग शो ऑफ करेंगे, अपनी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो ए इज द राइट ऑप्शन, कंजम्पशन उनके वहाँ पे हाई हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोन एज ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इंसान की साइकिल से लिंक नहीं करते, तो हम ई इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स आर दी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। इन केस इंक्रीज इन सप्लाई मनी विल लोअर द इंटरेस्ट रेट, एंड जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा तो फिर लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट ज़्यादा हो जाएगी तो लोग स्टॉक्स बॉन्ड्स में सेव करेंगे, तो सेविंग ज़्यादा होगी और कंजम्पशन को डिस्करेज हो जाएगी। If in the population number of adults increases compared to the children and old aged, the A and C are the right option. Consumption increase कर जाएगी और saving go down हो जाएगी। Decrease government expenditures and increase taxes. जब टैक्स इंक्रीज हो जाएंगे तो लोगों को टैक्स पे करने पड़ेंगे, इनकम रिड्यूस हो जाएगी, सारी बात उसके हिसाब से कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाएगी। Keynes psychological law of consumption did not present B is the right option any statistical support. Statistical support data Keynes ने नहीं दिया अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। After Keynes, many economists presented various theories and they present the statistical support in favor of their theories. And those theories, all of the above theories are the right options. The absolute income theory, the relative income theory, C is the permanent income theory, and D is the life cycle income theory. ये सारी ऐसी theory है जिन्हें इकोनॉमिस्ट ने अपनी theories को एक statistical support के थ्रू पेश किया, और Keynes अपनी theory के फेवर में कोई statistical support नहीं दे सका। Give your feedback in the comment section below, and if you like my video you can share it and subscribe my channel as well.